Okay, so I'm turning on my camera. You also turn on your camera. Am I visible to you, Nitin? Yes, And yes, yes. you have turned on your camera? Yeah, I'm turning on. 1 minute. Is visible? Not yet. Hmm. Okay, no issue. I'm going forward. And Yeah. so, as you know, my name is Rekha Hindwar. I'm graduated from Triple IT Allahabad, and I have total 5 years of industrial experience. Okay, and Okay. I'm gonna teach you the service now, for which I have 1 year of experience with the industry and with the Wipro company. Okay, I was working Okay. there, and rest of the experience I have as a Java developer, 3 years, and 1 year as a test engineer and co-founder of the one of the company. So I have Okay. experience of running a company as well, though it was unsuccessful. So that's all about me. Now it's your turn. Please tell me your brief introduction. Uh, so I have total experience of 12 years, which is asset management related. Initially, I'm working as the hardware asset engineer, like 4 years, and then I started to lead position, and I'm managing the hardware asset, then software asset management little bit, then handling the procurement part, and now I'm leading that hardware asset management as well as the IFS support team, who is taking almost 10 people under me. And now I want to like learn something service now, because it's having a developer and admin access, because in current organization we are using service now for day-to-day activities and stuffs. So I want to move career in the service now. Basically, one of the tools should be have a good experience. So Mhm. that's why I plan to join this course. Okay, okay. So you are already experienced in service now, as I know, as I come to know. Yeah, as a end user, like the developer and the little bit like end user for handling the tickets, CMDB database, but as a end user point of view, not like admin part of the access, then not for the developer part. And I'm not working in a developer end because I don't have the experience in any development or database something. I'm purely working as a management and lead position for uh, engineers level, like technical stuffs, the end user devices and those stuffs. Okay, so we can say that you worked on the help desk side, Correct. like resolving the incidents and change and problem like that. Not change in problem, only in Only hardware incident. related, yeah, incidents only. Okay, And hardware. the CMDB for hardware asset management, I have experience CMDB for creating the um, CIs and those stuffs. Okay, okay, okay. Completely understand. Okay, so are you aware of the PDF? Are you they shared you the PDF of the syllabus with you? Yeah, this, Okay, yes. so you must be aware of the about the module one. So today we gonna cover the module one. Okay, That sure. is about cloud awareness about the cloud computing. Okay. Yeah, Okay, so I'm gonna share my screen. I have prepared the PPTs for you, and I will sure, share it with you later on so that you can refer it. Okay. sure. So yeah, my screen is visible to you. Yes. Okay, okay. So
Yeah. So this is our PPT. So we gonna start from the cloud computing basics, and these are the three topics we gonna cover here. What is cloud, private and public cloud? What is SaaS? What is PaaS? Okay, and so Yeah. we are moving forward. So let's look at the formal definition that what is cloud. The cloud, here I mentioned the cloud is a distributed collections of servers that host software and infrastructure, and it is accessed over the internet. Cloud servers are located in data centers all over the world. By using cloud computing, users and companies do not have to manage physical servers themselves or run software application on their own machines. So what we understood here, that cloud is something that is not having some physical machine. Heard about that, the servers we in the companies we have to have the physical machines on some locations, and we access right. So those are the physical servers available for our companies. Cloud is a virtual machine. It is not physical machine. It is a virtual machine with having some specifications. Like a RAM would be 8 GB, some as specifications, machine specifications, and it will be virtual. It will be not physical. Okay, and we can Got it. access it through any device like desktop, computer, your mobile. And virtual machines, what are virtual machines? So technical term you come to know about the virtual machines are, suppose you are having your Android phone or Apple phone. Okay, so you are having applications in them like Facebook, right? Instagram. So whatever, these are the applications, these all applications are virtual machines. Suppose your phone breaks down anyhow, so, or you switch to new phone. You switch to new phone. So on the new phone, you can still access your application, and all the files and chats and all the photos, videos will be there, right? So they are not stored locally on your phone. They are stored somewhere which are operating by the some other company, right? Like Facebook can have their own virtual machines and cloud, so they can provide you the data centers. Data can be stored there, and these and using the internet you can access their application like Facebook and Instagram. और अगर आपको मैं हिंदी में बताऊं, तो जो आपके जो फोन है, उसमें आप जितनी भी एप्लीकेशंस यूज करते हो वो होते हैं वर्चुअल मशीन्स। और वो वर्चुअल मशीन्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है वर्चुअली, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं अपने फोन से। आपके फोन में वो स्टोर्ड नहीं है कहीं भी लोकली। आपके डिवाइस के अंदर वो फोटोज या वीडियोस जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर है वो स्टोर नहीं है, लेकिन वो कहीं और पे किसी डेटा सेंटर में, डेटा स्टोरेज में स्टोर है, जिसे हम क्लाउड कहते हैं। ठीक है, और वो हम अपने फोन से एक्सेस करते हैं। सो दैट इज क्लाउड। यू अंडरस्टूड? नितिन, आर यू देयर? हेलो नितिन। नितिन, आर यू अवेलेबल ऑन द चैट? वन पार्टी। नितिन, नितिन, आई एम ऑडिबल टू यू?
Nitin, if you are not able to talk, then you can send the message as well in the chat so that I can see you are available. Nitin, हेलो, हेलो नितिन, हेलो. Sorry, my net get disconnected. Okay, okay. So, did you understood what I told you? Yes, yes, Any yes, yes. any doubt? No, nothing. Okay, so you understood what is cloud, right? Yeah, yes, Okay, yes. okay. So suppose this is the application, this is the database which is saved in the cloud, right? Cloud of Right. it could be Facebook or it could be Instagram, anything. And this is the user device. It could be your mobile, it could be your laptop, it could be anything from where we are accessing the application and database. Okay. Yeah. Okay. So this is the design. So let's go. So what are the examples of the cloud? Email providers like Gmail, Microsoft Office, 365. We have Gmails, and in the Gmail we can send out that we can perform multiple actions. So these all are the examples of cloud. Okay. AWS, Yeah. Amazon Web Services, they provide the storage services and the hosting services and all. So there are many AWS, Amazon Web Services are available for us. Social media like Facebook, Instagram, etc. Okay. And then ServiceNow and Salesforce. These are also part of cloud the computation. So cloud computing working. How cloud computing works. So let me read out it for you first. Cloud computing is possible because of a technology called virtualization. Virtualization allows for the creation of simulated digital only virtual computer that behaves as if it were a physical computer with its own hardware. This is what I told you earlier in the previous slide, right? The technical term Correct. for such a computer is virtual machine. तो ये एक कंप्यूटर है, वर्चुअल कंप्यूटर, जो कि सिमुलेट करता है फिजिकल कंप्यूटर को. ओके. Correct. सिमुलेट का मीनिंग हम समझते हैं या मैं इसको और डिस्क्राइब कर दूं? नहीं, that's fine. ओके Simulation, I know. ओके ओके. सो ये एक फिजिकल सर्वर को सिमुलेट करता है, फिजिकल मशीन या सर्वर हम बोल सकते हैं, उसको सिमुलेट करता है वर्चुअल मशीन. तो ये एक वर्चुअल मशीन होती है जो समवेयर इट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट एंड वी कैन एक्सेस देम. When properly implemented, virtual machines implemented on the same host machine are sandbox from one another. Sandbox का इधर मीनिंग क्या है कि मान लो आपका आपका मोबाइल है और इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं. अब वो मल्टीपल एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ शेयरेबल नहीं होती है, राइट? अगर कोई मेल का आपका एप्लीकेशन है तो उसका डेटा आप फेसबुक एप्लीकेशन से नहीं एक्सेस कर सकते, राइट? Correct. तो दे आर इंडिपेंडेंट. हम एक एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरे से नहीं कर सकते. और होस्ट क्या है? हमारा मोबाइल.
तो हमारे ये यहाँ बोला जा रहा है, व्हेन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड वर्चुअल मशीन्स इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेम होस्ट लाइक अवर मोबाइल और डेस्कटॉप machine a sandbox from one another, so they do not interact with each other at all. Okay, and the files and application from one virtual machine are not visible from other virtual machines even though they are on the same physical machine. Got it? Got अगर it. आप सेम फिजिकल मशीन में भी उसको एक्सेस कर रहे हैं तो दो वर्चुअल मशीन का फाइल और एप्लीकेशन एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता है. दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. Got it. And main service models of cloud computing. So cloud computing के main service models क्या हैं? SaaS है. SaaS का full form होता है Software as a Service. Okay, got it? क्या होता है? Yes. Repeat after me. Software as a service. Software as a Service. और PaaS का होता है Platform as a Service. और IaaS, हाँ, Platform as a Service. और IaaS का क्या होता है? Infrastructure as a Service. Okay. Okay, so let's look at the SaaS, software as a service first. So infrastructure as a service और platform as a service में क्या difference है? Okay, मैं बताती हूँ आपको, धीरे धीरे हम आएंगे उस पे. Okay. सबसे पहले हम जाते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजर्स इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन ऑन देयर डिवाइस, SaaS एप्लीकेशन आर होस्टेड ऑन क्लाउड सर्वर्स and users access them over the internet. ओके, तो क्या है बोल रहे, जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने सिस्टम में या मोबाइल में सिस्टम में उसे इंस्टॉल करें. ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो हम ओवर द इंटरनेट, जीमेल एप्लीकेशन, कुछ कुछ ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो कि दोनों एज ए SaaS भी अवेलेबल होते हैं, एज ए प्लेटफॉर्म भी, एज ए PaaS भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ऐसे है जैसे हम एक हाउस को रेंट कर रहे हैं और लैंडलॉर्ड पूरा मेंटेन कर रहा है हाउस को, लेकिन उस टेनेंट रह रहा है, उसको यूज टेनेंट कर रहा है, किराएदार. तो ऐसे ही है ये बिल्कुल, कि इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन ऑन देयर hosted on cloud servers and user access them over the internet. Got it? क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो होस्टेड है क्लाउड सर्वर्स पर और उसको यूजर करता है इंटरनेट के थ्रू. Okay, got it. Got it? Like Salesforce हो गया, Slack. You heard about Salesforce? Salesforce is very similar to ServiceNow. Or Slack is a messaging application, as you know. Right? We text each other. Yeah, like Skype. Skype is also an example. What is PaaS? In this model, companies do not pay for hosted applications. Instead, they pay for the things they need to build their own applications. PaaS vendors offers everything necessary to building an application, including development tools, infrastructure, and operating system over the internet. तो SaaS और PaaS में डिफरेंस क्या है? SaaS में हम पूरा सॉफ्टवेयर बनाया एप्लीकेशन हम प्रोवाइड कर रहे थे, राइट? जहाँ पे हमें कुछ भी अपनी तरफ से बनाना नहीं पड़ता, हमें बस उसे यूज करना पड़ता है, राइट? करेक्ट. PaaS में क्या है, हम अपने वो एक बिल्डिंग टूल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सर्वर, ये सब हमें प्रोवाइड करता है, जिनको यूज करके, उन बिल्डिंग टूल्स को यूज करके हम अपने लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हैं. Got it. Got it. In the sense that normally we are purchasing that hardware and then we build for internal server, those stuffs that other than they will give us service to us. Yes, we will. What we will do, we will be, and using those building tools, we can make our own applications. Okay. Yes. And PaaS can be compared to renting all tools and equipment necessary to building a house instead of renting a house itself. तो एनालॉगी बता रहा है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे SaaS में क्या एनालॉगी थी कि लैंडलॉर्ड पूरी हाउस को मेंटेन कर रहा है लेकिन उसे यूज कोई और कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है
एनालॉगी कि हमें बिल्डिंग जैसे कंक्रीट दे दिया जाएगा, और ओके ब्रिक्स ब्रिक्स दे दिए जाएंगे और मशीनरी दे दी जाएगी, जिसको यूज करके हम खुद का क्या घर बनाएंगे वहां पे। टूल्स एंड Okay. यूजिंग टू इंस्टेड ऑफ रेंटिंग ए हाउस इटसेल्फ। तो हम हाउस रेंट पे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम बिल्डिंग टूल्स दे रहे हैं जिनको यूज करके हम अपना हाउस बना सकते हैं या एप्लीकेशन बना सकते हैं। Got it. एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इन दिस मॉडल कंपनी पेज फॉर द सर्वर्स एंड स्टोरेज दे नीड फ्रॉम ए क्लाउड प्रोवाइडर। दे कैन यूज दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिल्ड देयर एप्लीकेशंस। जैसे कि आपने डिफरेंस पूछा था, है ना? Correct. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है क्या। तो देखो, सेस में हमें एप्लीकेशन बनी बनाई मिल रही थी और हमें उसे यूज करना था। पैस में क्या था? हमें बिल्डिंग टूल्स दिए जा रहे थे जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट? और Right. आईएस में क्या है कि हमें ना सर्वर और स्टोरेज सर्विस दी जाएगी। स्टोरेज सर्विस जैसे आप डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस में आप Hmm. कुछ स्टोर करते हैं, तो वैसे ही हमें स्टोर करने के लिए और सर्वर मिलेगा, स्टोरेज मिलेगी और सर्वर मिलेगा। लेकिन हमें वहां पे खुद खुद के ही बिल्डिंग टूल्स यूज करने पड़ेंगे और खुद के ही एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है? हमें स्टोर करने के Right. लिए स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सर्वर को होस्ट करने के लिए सर्वर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन व्हाट टू डू, हमें हमें इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए हैं। इसकी एनालॉजी क्या है कि हमें प्रोवाइड कर दी गई है प्लॉट। हमें प्लॉट प्रोवाइड कर दिया गया है, अब हमें अपने ही बिल्डिंग मटेरियल्स यूज करने पड़ेंगे वहां पे घर बनाने के लिए। Got it. और हमें एज ए क्लाउड क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ प्लॉट। तो ये डिफरेंस है सैस, पैस और आईएस में। Got it. गॉट इट? एग्जाम्पल्स आर Yes. डिजिटल ओशियन, गूगल कंप्यूट इंजन एंड ओपन स्टैक। अब हम आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स क्या हैं। Okay. ओके, सो पहले मैं पहले का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जितना भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आपको इसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? नहीं नहीं, that's clear. Clear? Like, what is Yes. cloud? And this is the diagram showing what is cloud and user device and all. And these are the examples and cloud computing working. And this is the diagram for the models. And I told you what models are available and I explained to you. Okay? अब Right. अब हम वो कैटेगराइज किया था मॉडल के बेसिस पे, सैस, पैस, पैस और आईएस। नाउ हम कैटेगराइज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। ओके? तो Yeah. देर आर मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट्स, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमें कवर करना है वो 2 ही टाइप हैं, राइट? अगर आपने पीडीएफ चेक किया हो, प्राइवेट और पब्लिक। लेकिन मैंने Correct. आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड को भी इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप बेटर समझ सकें। ठीक है? तो Okay. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? ए प्राइवेट क्लाउड इज ए सर्वर, डेटा सेंटर और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होली डेडिकेटेड टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप जानते हैं जैसे अमेजोन कंपनी है, जैसे फेसबुक कंपनी है, इन लोगों ने मतलब किसी और से क्लाउड सर्विस नहीं ली है, राइट? दे हैव देयर ऑन डेडिकेटेड सर्वर, उनके खुद के सर्वर्स हैं। इट इज Yeah. डेडिकेटेड टू, इट इज प्राइवेट। अगर अगर कोई कंपनी है तो उसके खुद के वो सर्वर्स हैं, वो किसी से मतलब क्लाउड की सर्विस ले नहीं रहा है, उसके अगर खुद के सर्वर्स हैं, चाहे वो वर्चुअल हो या कैसे भी हो, तो अगर उसके खुद के सर्वर्स हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। इट इज डेडिकेटेड टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि हम किसी से सर्वर एज ए सर्विस लेते हैं, जैसा अमेजोन वेब सर्विस है, उसकी जो सर्विसेज हैं स्टोरेज की या सर्वर होस्टिंग की, वो हम उनसे बाय करते हैं, हम उनसे कुछ पे करके उनसे वो सर्वर बाय करते हैं, तो वो होते हैं पब्लिक क्लाउड। ठीक है? वो हमने किसी और से लिए हैं। और इससे क्या होता है कि जो छोटी कंपनी होती हैं, छोटी कंपनी लाइक जो स्मॉल वेरी स्मॉल स्टार्टअप्स,
they can't afford their own dedicated private cloud, so they go for the public cloud. They can pay the money and they can buy it for them. क्योंकि उसमें जो मैनेजमेंट होता है, क्लाउड का जो मैनेजमेंट होता है, वो कौन कर रहा होता है? वेंडर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसका पूरा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट वो करता है, और हमें सिर्फ एक कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और हम उनसे बाय कर सकते हैं वो क्लाउड सर्विसेज जो भी हमारे हमारे लिए नीडेड है। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं ही एक कंपनी में काम करती थी, हमारा एक खुद का प्राइवेट क्लाउड भी था और हम कुछ सर्विसेज अमेजन वेब सर्विसेज से बाय भी कर रहे थे। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। गॉट इट? ओके, गॉट इट। या बट ऐसा नहीं कर सकते, राइट? मीन्स अगर हम सर्विस प्रोवाइड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेल का कोई सर्विस हम ले रहे हैं, सो हमारा प्राइवेट में भी है और हाइब्रिड में भी है, लाइक पब्लिक में भी है। ऐसा टू सर्विसेज दो जगह पे हो सकता है, या ओनली वन जगह पे हम वो ले सकते हैं? ओ सॉरी, ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया था, मैं उसको देखने लगी थी। आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए अपना, आप क्या पूछ रहे हैं? या सो अभी सपोज हाइब्रिड क्लाउड में हमारा, हाँ। हम सर्विस ले रहे हैं जीमेल का, फॉर एग्जांपल प्राइवेट में भी है हमारे पास, हम्म। एंड वी वांट सेम मेल सर्विस इन पब्लिक आल्सो। सो वो पॉसिबल है, या एप्लीकेशन जो भी है या कुछ भी सर्विसेज है, ओनली वन क्लाउड में ही हम ले सकते हैं? वन नहीं नहीं, डिफरेंट क्लाउड होने चाहिए। सपोज आप बोल ओके। रहे हैं आप जैसे आप मेल सर्विस की बात कर रहे हैं, राइट? तो मेल हम्म। सर्विस में क्या होता है कि जो कंपनियां, जब हम कंपनी में काम करते हैं, एक होता है हमारा प्राइवेट होता है ना, जीमेल जो हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस होता है, और एक राइट। होता है जो हमें कंपनी से मिलता है, वो जो उन्होंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें मिलता है अपना अकाउंट, है ना, जब हम करेक्ट। कंपनीज में काम, तो वो जो सर्विस होती है वो उन्होंने आउटसोर्स की होती है। आउटसोर्स इन द मीन्स उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से वो सर्विस बाय कर रखी है, सो दैट इज पब्लिक क्लाउड। गॉट इट? वो यस, पब्लिक गॉट इट। क्लाउड है। और जो जीमेल आप यूज करो वो भी पब्लिक क्लाउड ही है, लेकिन वो आपने इंडिविजुअल यूज के लिए ले रखी है, आपका वो प्राइवेट नहीं है। लाइक आपका वो प्राइवेट इन द सेंस, मैं ये कहती हूँ कि वो जो क्लाउड सर्विस है वो कोई आपको ना, आप यूज कर रहे हो किसी कोई और प्रोवाइड कर रहा है वो आपको। जीमेल की सर्विस है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी करेक्ट। प्रोवाइडेड है डिफरेंट। गॉट इट। वो जीमेल उसका प्रोवाइडर है तो वो भी पब्लिक और वो भी पब्लिक। अब प्राइवेट क्या होता है, कोई कंपनी होती है उनकी खुद के डॉक्यूमेंट पर जो भी डेटा जो वो सेव कर रहे हैं उनकी कोई किसी सर्वर पे डेटा जाके सेव हो, आउटसोर्स कर रहे हैं, उस केस में वो प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है। और प्राइवेट क्लाउड हम तभी यूज करते हैं जब हमारी कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी होती है। ओके, गॉट इट। गॉट इट? यस। ओके। और मल्टी क्लाउड में क्या होता है कि हम बहुत सारे मल्टीपल पब्लिक क्लाउड्स को रेंट आउट कर, पब्लिक क्लाउड्स को डिफरेंट वेंडर से ले रहे होते हैं। सपोज हमारी कंपनी है, आप भी काम करते हैं, मैं भी काम कर चुकी हूँ, ठीक है? तो क्या होता है कि यस। हमने मेल सर्विस, जो हमारी जो कंपनी है हमारी, उन लोगों ने मेल सर्विस भी खरीद रखी है माइक्रोसॉफ्ट से, सपोज। तो वो एक पब्लिक हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया, है ना? वो सर्विस प्रोवाइडर राइट। वेंडर डिफरेंट है। हम और सपोज हमने जो जो डेटा है वो हम स्टोर कर रहे हैं अमेजोन वेब सर्विसेज में, S3 कहते हैं जिसे, S3 बकेट में हम अमेजोन से बाय कर रहे हैं सर्विस डेटा। तो वो ये भी हम दूसरे दूसरे वेंडर से यूज कर रहे हैं उसकी पब्लिक क्लाउड, है ना? तो ऐसे अगर हम करेक्ट। मल्टीपल सर्विसेज खरीद रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स, तो वो होता है मल्टीपल पब्लिक क्लाउड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, वो उससे हम कहते हैं मल्टी क्लाउड। गॉट इट। गॉट इट? या। तो ये हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड हमारे सिलेबस में था नहीं, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है? मोस्टली ओके। हमारे हमारे जो सिलेबस के स्कोप में क्या था, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, दैट्स इट। ओके। और ये सोर्स है, ठीक है? तो ओके। अगर अभी आपको एक बार रिवाइज और करवा दूंगी। आज का सेशन थोड़ा लाइट रखना था तो मैंने आपको इतना ही बताया है, मॉड्यूल 1 कवर किया है।
ओके। इस क्लाउड, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, व्हाट इज SaaS एंड व्हाट इज PaaS। सो इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो मुझसे। नहीं, दैट इज क्लियर ना। दैट्स एनफ। आर यू क्लियर? यस। यस। ओके, ठीक है। एंड ये रिकॉर्डिंग सेशंस आप व्हाट्सएप पे मैं लिंक आपको दोगी या? यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं, रैप अप करते हैं। आप इसको जाके स्टडी कीजिएगा, ठीक है, अपने आप से। और मैं यस। आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और आपको इस वीडियो का लिंक भी भेज दूंगी। ठीक है, ओके। यस। ठीक है, चलिए, ओके। एंड सर्विस नाउ में मुझे जस्ट ये पूछना था, लाइक द डेवलपर एंड एडमिन दोनों भी रोल्स है, राइट? इट्स हम्म। अ डिफरेंट डिफरेंट एंड तो अगर बैकग्राउंड मुझे टेक्निक लाइक डेवलपमेंट कुछ भी नहीं आता है उसमें, हम्म। सो कैन आई गेट अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपर थिंग्स, देखो, राइट, इन सर्विस? एडमिन एडमिन का आप सीख सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए देखो हम सर्विस नाउ के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, हम्म। तो जावास्क्रिप्ट आपको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। जो हम ओके। डेवलपमेंट करते हैं सर्विस नाउ के अंदर वो होता है जावास्क्रिप्ट में। तो आपको जावास्क्रिप्ट के ये एक्चुअली अभी हम धीरे धीरे, जब तक मैं आपको एडमिन पढ़ाऊंगी ना तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप जावास्क्रिप्ट को जितना हो सके नॉलेज गेन करें ऑनलाइन। ठीक है, ओके। ठीक है। कुछ आपके पास रेफरेंस लिंक वगैरह ओके, कुछ मैं हो, आपको बिकॉज सेंड आई करूँ, एम। मैं आपको सेंड कर हाँ, दूंगी। मैं टोटली न्यू है इस डेवलपमेंट केस में, सो इफ यू हैव समथिंग ओके, तो मैं श्योर। वो रेफर करके आई डू इट फॉर माई सेल्फ लर्निंग। ठीक है, ठीक है, मैं आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। यस। तो आज का सेशन हम यहीं रैप अप करते हैं, और कल मैं कवर करूंगी आपका सेकंड मॉड्यूल। ठीक है, श्योर। उसमें रेफर कर लीजिएगा। में कोई भी डाउट होता है तो सबसे पहले हम डाउट क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे मॉड्यूल 2 में। श्योर। ओके। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके। चलो, बाय। थैंक यू। ओके, बाय।